Good afternoon once again to online students and also to the offline students sitting at the back. आवाज आ रही है वहां तक? Am I audible till the back? ठीक है. तो अभी आप लोग सीसेट भी पढ़ रहे थे, है ना? अभी तो धीरे धीरे सीसेट की क्लासेस भी रफ्तार पकड़ेंगी. आज तो सर ने मोस्टली इंट्रोडक्शन वगैरह ही कराया होगा. ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद दैट. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? वी आर गोइंग टू सी द क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ बांग्लादेश, है ना? दिस इज आवर टुडेज टॉपिक कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है. वो क्राइसिस का वजह क्या है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द क्राइसिस? क्या वो क्राइसिस एक दिन में आया कि वो टाइम लिया है उस क्राइसिस को डेवलप होने के लिए, है ना? वी आर गोइंग टू सी. ऑब्वियसली आई विल कम्युनिकेट मोस्टली इन इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? सो आई फॉरगॉट आफ्टर सीइंग योर फेस ओनली आई कुड रिमेंबर दैट. ओके, मतलब obviously I will try to make it bilingual so that you can also understand, so don't worry about it. Okay, so we are going to see the crisis of Bangladesh, the political crisis of Bangladesh. The political crisis of Bangladesh is rooted in the history and also the ongoing political process. So we are going to see the entire process and also understand from the perspective of our syllabus how this is going to help us, है ना? तो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन राइटिंग गुड एसेज. दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन राइटिंग जीएस पेपर 2. इन जीएस पेपर 2 वी स्टडी समथिंग. वी स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन. सो ऑब्वियसली बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन विल बी इम्पैक्टेड बाय द पॉलिटिकल क्राइसिस इन बांग्लादेश. तो वो हम देखने वाले हैं. ठीक है. इन GS2, apart from GS2, in GS1 we have a subject called Indian society. So this is not Indian society, that is Bangladeshi society, but still so many feature of Bangladeshi society is similar to the Indian society and how crisis develops in a society, है ना? वो चीज भी समझने वाले हैं. And the crisis is political in nature. किस तरह का क्राइसिस है? पॉलिटिकल, है ना? तो इंडिया में भी हमने इमरजेंसी देखा हुआ है. वी हैव सीन इमरजेंसी इन 1975. दैट वाज आल्सो अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन. ये भी उनका क्या है? एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन. तो वी आर गोइंग टू सी द क्राइसिस लाइक सिचुएशन दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन आवर सब्जेक्ट्स कॉल्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ओके, इन जीएस पेपर 3 देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स. हैव यू हर्ड अबाउट इट? ओके, सो इन इकोनॉमिक्स exclusively one topic has been given in your syllabus called microcredit. Microcredit, do you understand what is credit? Credit क्या होता है? बोलो. GS पेपर 3 microcredit. Microcredit, microcredit is related to the current prime minister of Bangladesh, Muhammad Yunus. Have you heard about Muhammad Yunus? Okay, now you have already. Okay, in GS paper 4, that is ethics, what ethical things the leaders, the army men have to follow in such crisis situation, we can also relate to that also, है ना? In GS paper 5, which is specifically related to APSC and not UPSC. UPSC is still here only. So in GS paper 5, we will be GS paper 5, it will be related to Bangladesh to Assam, है ना? Migration of people which has been continued from last 50-60 years and so. Once India got independence in 1947 and India was divided into India and Pakistan, we could see the influx of migrant from Pakistan to India. The Bangladesh used to be Pakistan only. तो ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं. With all respect, we are going to analyze this topic. Okay, so it is not going to be just the analysis of the news कि हाँ शेख हसीना क्यों भागी और ये क्यों आ गया हो गया. That's it. We are not a YouTuber कि बस वही काम करके काम खत्म कर देना है ना? The whole purpose is to understand it from the perspective of our syllabus. Okay, so let's start from the very basics. I am going to start from the very basic, and that is from 1947. The PDF and the PPT is aside, and I am going to start from 1947. So let me start. In 1947, one very beautiful country was crafted geographically.
that is India. And apart from India, there is one more country. There was one more country, and that one more country was called Pakistan. So that is Pakistan. And here also, this country is nothing but Pakistan. Are you understanding? Now, in 1947, this was the map of India and Pakistan. And the map was divided, the boundary line was divided by a Britishers, and the name of Britisher was Radcliffe. What was the name? Name of the Britishers was nothing but Radcliffe. Name of the Britisher who divided those boundary line was Radcliffe. So sometimes the boundary line between India and Pakistan and boundary line between India and Bangladesh is also called as Radcliffe line. ये prelims में काफी important होता है. This is very important in our prelims examination. Are you getting my point? In prelims examination that can be asked very readily. Radcliffe line इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है, इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है. तो ऑब्वियसली बांग्लादेश वाज क्रिएटेड मच लेटर. पहले तो पाकिस्तान ही बना था. इनिशियली देयर वाज पाकिस्तान. तब बोलते थे इसको वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. सो ऑब्वियसली द होल पाकिस्तान वाज कंट्रोल्ड बाय वेस्ट पाकिस्तान ओनली. They were politically dominant, so they were controlling the whole Pakistan. Obviously, Pakistan started with a democratic country, but later on became military-ruled, authoritarian country. And elections happened in Pakistan in both the places, and the parties which used to come in power was the party belonging to the West Pakistan. And West Pakistan started imposing themselves on East Pakistan on every possible manner. है ना? कौन कौन सा पॉसिबल मैनर? डेवलपमेंट कहाँ हो रहा था? वेस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं. वेस्ट पाकिस्तान इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स. उसमें से इंपॉर्टेंट रीजन आता है पंजाब, लाहौर वगैरह जो कहाँ आता है? पंजाब में ही आता है. एंड दे आर नेचुरली पंजाबी स्पीकिंग पीपल. But they made Urdu as their national language because Urdu is related to somewhat Islam, so that's why they made Urdu as their national language. अब वो लोग खुद पंजाबी बोलते हैं, but दूसरों पे क्या impose करने लगे? उर्दू. They started imposing Urdu on themselves. They also accepted that okay, we need to learn Urdu. Till then, Indian Muslims speak better Urdu than Pakistani Muslim. They speak Punjabi only, Urdu in Punjabi accent they speak. That was fine for them, West Pakistan. But वही काम वो किसके साथ करने लगे? East Pakistan के साथ. They also starting themselves on East Pakistan. Okay, you need to speak Urdu. And East Pakistan was Bengal only. And they were speaking Bengali language. Are you getting me? They are like कि उर्दू सीखेंगे but बंगाली तो रहने दो. दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर आइडेंटिटी. हम लोग अपना आइडेंटिटी कैसे छोड़ देंगे? समझ में आ रही बात? मीट खाएंगे बट मछली तो छोड़ दो. हम तो मछली खाते हैं प्राइमरीली. समझ में आ रही बात? सो यहाँ पे क्या होने लगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, मतलब पॉलिटिकली पावरफुल वेस्ट पाकिस्तान ओनली. कल्चरल सब्जुगेशन वर्ड यूज होता है. व्हाट वर्ड? कल्चरल सब्जुगेशन. West Pakistan started to subjugate East Pakistan culturally. समझ में आ रही बात? Slowly resentment started in the East Pakistan. That just because we belong to the same religion doesn't make us a single nation. For making a single nation, there should be a national spirit. There should be a feeling of oneness. So they started feeling that कि oneness तो नहीं है इनके बीच और इनके बीच. Slowly the movement started in East Pakistan, है ना? And obviously there were Hindus also, Buddhists also, है ना? और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं था. तो बीट हिंदू, बीट बुद्धिस्ट, बीट मुस्लिम, they started coming into different part of India because of different reason.
That is called migration. Migration occur because of two reasons. One is called push factor, push, and one is called pull factor, है ना. पुश मतलब सबको कोई वहां से पुश कर रहा है, somebody is pushing you, भाग यहां से. तो व्हाट इज पुशिंग? ऑब्वियसली फॉर माइनॉरिटीज देयर, माइनॉरिटीज बुद्धिस्ट हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, हिंदूज हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं. फॉर माइनॉरिटीज देयर द थ्रेट, लाइफ थ्रेट वाज पुशिंग देम कि तुम यहां से जाओ. फॉर मेजोरिटी इन ईस्ट पाकिस्तान, मतलब अगर मुस्लिम लोगों की बात करें उनके लिए, देयर वाज पुल फैक्टर इन इंडिया, दैट इन इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वाज बेटर. So that's how we see so much of migrants from Bangladesh to different parts of India. है ना, different parts of India means West Bengal, different parts of India means Assam, different parts of India means Meghalaya, different parts of India means Tripura. Are you getting my point? So in West Bengal, the ethnicity was completely similar. है ना, so whatever they went into West Bengal, वहाँ जाके वो infuse हो गए and they started living मतलब together only. In Meghalaya, the ethnicity was completely different. Meghalaya is primarily comprised of Garo, Khasi, Himalaya and the tribal groups. So obviously the ethnicity of Bangladeshi people were completely different. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा you cannot see the problem. But later on they started coming into the Assam. Somewhat they find it easier to settle in Assam than in Meghalaya and than in other parts. तो Assam you could see the migration problem, है ना, and also in the region called Tripura and somewhat Mizoram and also other parts also. ये सब सिलसिला चलता गया and we started feeling that कि सारा problem चल रहा है. तो in 1971 इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था बताओ? What was the name of Indian Prime Minister? इंदिरा गांधी, है ना. उन्होंने बोला कि अब कुछ करना पड़ेगा. पाकिस्तान ने थोड़ा इनिशिएशन कर दिया एंड द वॉर स्टार्टेड अगेन, है ना. तब तक बांग्लादेश के अंदर एक ग्रुप बन गया था. दैट नेम ऑफ द ग्रुप वाज मुक्ति वाहिनी. क्या नाम था? मुक्ति वाहिनी. कि हमें बांग्लादेश को क्या बनाना है? मुक्त करना है, मुक्त फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को मुक्त करना है. तो बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी, है ना, लेटर ऑन पाकिस्तान हार गया. जो पाकिस्तान की आर्मी थी, दे सरेंडर्ड. 93,000 आर्मी मैन सरेंडर्ड, पाकिस्तान वाले, है ना. और वो क्या बन गए थे? प्रिजनर ऑफ वॉर. ऑब्वियसली इन वॉर इफ यू लूज यू विल बिकम प्रिजनर ऑफ वॉर. बट इंडिया ग्रेसफुली रिटर्न्ड ऑल द प्रिजनर ऑफ वॉर टू द पाकिस्तान. एंड देन इंडिया साइंड विथ पाकिस्तान a declaration called Simla Declaration. Which declaration? Simla, है ना. तब उसमें बांग्लादेश अलग नेशन क्रिएट हो गया. एंड द पर्सन हु लेड द रिवॉल्यूशन ऑफ बांग्लादेश वाज कॉल्ड शेख मुजीबुर रहमान. शेख मुजीबुर रहमान. एंड द नेम ऑफ हिज पार्टी वाज आवामी लीग. कौन सी नाम, क्या नाम था? आवामी लीग. Okay, so Awami League came into power. Obviously he was the freedom fighter for them. He was Gandhi Nehru combined. आ रही बात समझ में? So he came into the power and India started good relationship with Bangladesh, है ना. 1971, 1972. In 1975, obviously Bangladesh is starting as a new nation, है ना. So new nation has so many problems. Political problems are the main problems, है ना. कि some persons are accepting him as a leader but some other persons are not accepting him as a leader. समझ में आ रही बात? 1975, in 1975 there was military coup. क्या हुआ? Military coup. This was also the time when India was facing emergency like situation. आ रही बात समझ में? India was not there to help Bangladesh at that time. वहाँ की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली को मार डाला, जो भी आर्मी के हेड थे उन्होंने. आ रही बात समझ में? बट लकीली द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान वाज इन ब्रिटेन. यूरोप में थी वो और वो बच गई क्योंकि शी वाज नॉट देयर इन बांग्लादेश. और उनका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉटर?
शेख हसीना. तो शेख हसीना stayed in Europe only, and after 5-6 years she returned to Bangladesh once the situation normalized. है ना. और पीपुल वेयर बोर्ड ऑफ दैट आर्मी रूल एंड ऑल, कि आर्मी रूल तो अच्छा नहीं है. पाकिस्तान में भी क्या चल रहा था, आर्मी रूल. यहां भी क्या चल रहा था, आर्मी रूल, है ना. दीज ऑल वेयर बंगाली पीपल वेयर, मतलब ओरिजिनली वो डेमोक्रेटिक नेचर के ही होते थे, है ना. बंगाल वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया सिंस द हिस्टोरिकल टाइम्स. फिर ये सब चीजें होने लग गया. 1975 में देयर वाज मिलिट्री कू, एंड इन 1981 शेख हसीना रिटर्न, और आते ही उनको अवामी लीग का क्या बना दिया गया, लीडर बना दिया गया. आते ही शी वाज मेड लीडर ऑफ द पार्टी कॉल्ड अवामी लीग, है ना. ऑब्वियसली अवामी लीग वाज द पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ हर फादर, एंड शी कंटिन्यूड बीइंग द लीडर ऑफ अवामी लीग. शी गैदर्ड ऑल द, मतलब कार्यकर्ताज एंड ऑल, एंड स्टार्टेड डूइंग द पॉलिटिकल थिंग्स in the Bangladesh. And also there was one more party, है ना, BNP, Bangladesh National Party. There was one more party called Bangladesh National Party, led by खालिदा जिया. किसके द्वारा, खालिदा जिया. यहां तक समझ में आ रहा है ना. वी हैव लेफ्ट सम पार्ट कि इंडिया में कैसे माइग्रेशन हो रहा है, आसाम पार्ट, दैट विल बी डेल्ट इन पॉलिटी एंड डिफरेंट टॉपिक्स. आई एम जस्ट building the momentum so that you can understand the whole story. आ रही बात समझ में. There was one party, BNP, Bangladesh National Party, led by the person called Khalida Zia. They started doing the tie-up, है ना. They started doing the tie-up, और tie-up करके उन्होंने 1991 में उन्होंने मिलिट्री को भगा दिया मतलब पॉलिटिकली हरा दिया. Obviously you cannot fight military with the weapons. Military has the weapons, you do not have the weapon, है ना. तो obviously world, United Nation and all the powers are with you mentally, morally. समझ में आ रही बात. तो मिलिट्री के पास लड़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं. तो मिलिट्री रूल खत्म हुआ. मिलिट्री रूल ended in 1991, है ना. और who came to the power? The democratic regime came to the power. Bangladesh became a democracy. मतलब डेमोक्रेसी तो 1972 में था, डेमोक्रेसी रिटर्न्ड वी कैन से, है ना. आफ्टर 1-2 ईयर शेख हसीना पार्टेड वेज विथ खालिदा जिया, मतलब इनकी पार्टी से उन्होंने कोएलिशन तोड़ दिया, है ना. खालिदा जिया अलग, शेख हसीना अलग. वैसे भी अलग अलग पार्टी थी, नीतीश कुमार की तरह समझ लो, है ना. ठीक है. इसके बाद से 1996 में फॉर द फर्स्ट टाइम शेख हसीना केम टू द फुल फ्लेज्ड पावर. मतलब डेमोक्रेसी रिटर्न, बट शेख हसीना वाज नॉट द पीएम एंड ऑल. शेख हसीना रिटर्न टू द पावर एंड शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. Obviously she was having the support of all the Awami League and all the freedom fighters and everyone. समझ में आ रही बात. ये सारा सपोर्ट उनके पास था. फिर ऐसे ही डेवलपमेंट होते गया, एंड सी स्टार्टेड इंप्रूविंग बांग्लादेश पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, है ना. ये सब चीजें होती गई. अगेन सी वाज इन पावर फ्रॉम 1996 to 2001. फिर फॉर द नेक्स्ट 8 years सी वाज इन अपोजिशन. In 2009 or so, she again came to power. Again came to power. From 2009, she became the prime minister for the second time. 2014, she became the prime minister for the third time. 2019, she became the prime minister for the fourth time. Are you getting my point? So second, third, fourth, even 2024 election also she won. She also won the election of 2024. है ना. तो economically she was doing some good thing. That's why there was economic reforms in Bangladesh, है ना. और बांग्लादेश का GDP जो है, the GDP of Bangladesh was rising. GDP per capita of Bangladesh was rising. आ रही बात समझ में? Okay. But she could not withstand the adversaries. जो political opponent थे, political opponent,
पॉलिटिकल अपोनेंट को वो जेल करने लगी. सी स्टार्टेड जेलिंग द पॉलिटिकल अपोनेंट, है ना. देयर वॉज अ काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजीम. विच काइंड ऑफ रिजीम? Authoritarian regime, totalitarian regime. That means Sheikh Hasina is controlling the Bangladesh totally, है ना. The elections are compromised. मतलब there are allegations, है ना. I am not saying that it has been compromised or not, but there are allegations that elections are compromised. She sent Khalida Zia into jail. तो Khalida Zia is in jail from last 4-5 years. आ रही बात समझ में? द बिगेस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट इज खालिदा जिया एंड सी इज इन जेल, है ना. सो द पार्टी ऑफ खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, स्टार्टेड अपोजिंग द इलेक्शन. दे ऑल्सो डिड नॉट टेक पार्ट इन टू द इलेक्शंस. समझ में आई बात? तो इकोनॉमिक गेन हुआ, देर वॉज लिटिल इकोनॉमिक गेन इन बांग्लादेश, बट देर वॉज ऑल्सो पॉलिटिकल डिक्लाइन. हाउ पॉलिटिकल डिक्लाइन हैपन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Political decline happened because of authoritarianism, totalitarianism. These are two similar words. And do you know about Hitler? If you are not democratic, if you are not giving proper space to the political opponent, है ना, मोदी जी जो चाहे वही करे, है ना, या कोई भी लीडर दुनिया में जो चाहे वही करे, ऑपोजिशन पार्टी को बिल्कुल भी स्पेस नहीं हो, इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज होने लगे. आ रही बात समझ में? ठीक है. तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे लोगों को ये फील आने लगता है, पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट कि द लीडर इज नॉट गुड और द इलेक्शन सिस्टम इज नॉट गुड. एक लेजिटिमेसी क्राइसिस आ जाती है. देयर इज अ वर्ड इन पॉलिटी कॉल्ड लेजिटिमेसी. यू स्टार्ट फीलिंग लाइक व्हाट एवर सी इज डूइंग और द लीडर इज डूइंग इज नॉट गुड, है ना. दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेसी क्राइसिस, है ना. If there is a voting process and 90% people come to the voting and then a person is winning, है ना, you will be like yes I have won, or he is like I have won. But in the election process, suppose only 30% people are voting, 70% are not going to vote, that means there is legitimization crisis. People are not accepting her or the election process as a good thing. आ रही बात समझ में? So similar time of crisis arrived in the Bangladesh because she started suppressing the political opponents, है ना. कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी राइज नहीं कर रहा है, started jailing the political opponents. खालिदा जिया को बोल दिया कि खालिदा जिया ने क्या किया है, करप्शन किया है, तो लास्ट 4-5 ईयर से खालिदा जिया इज इन जेल. समझ में आ रही बात? ये सारी चीजें बांग्लादेश में होने लग गई, है ना. चलो आगे बताते हैं. When Sheikh Mujibur Rahman was there, when he became the prime minister, Sheikh Mujibur Rahman, so he started a reservation policy. What kind of policy? Reservation. Reservation policy for whom? Reservation policy for the freedom fighters of Bangladesh. किसके लिए? Freedom fighter of Bangladesh. अब ये तो मर गए होंगे, तो इनके बच्चों के लिए, फ्रीडम फाइटर ऑफ बांग्लादेश एंड देयर डिसेंडेंट्स, इनके डिसेंडेंट्स के लिए क्या लगा दिया? रिजर्वेशन पॉलिसी, है ना. दैट वाज नॉट अ फुल फ्लेज रिजर्वेशन पॉलिसी, बट उसकी बात हुई. बट अभी शेख हसीना ने क्या कर दिया? 50% रिजर्वेशन पॉलिसी अलाउंस किया था. किसके लिए? उन्हीं लोगों के लिए जो कि फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चे. आ रही बात समझ में? देन स्टूडेंट प्रोटेस्टेड कि मतलब इसमें कितने ही लोग होंगे, फ्रीडम फाइटर मतलब इट्स नॉट इंटायर बांग्लादेश. जो लोग मरे होंगे ऑब्वियसली वो तो बहुत कम होंगे, उनकी फैमिलीज कम होंगी, उनको 50% रिजर्वेशन देना इज दैट इज टू मच. आ रही बात समझ में? एंड ऑब्वियसली इट विल बेनिफिट द आवामी लीग पार्टी बिकॉज दैट पार्टी इज द फ्रीडम फाइटर पार्टी ओनली. आ रही बात समझ में? दैट मीन्स इट इज हेल्पिंग ओनली द इंटरेस्ट ऑफ शेख हसीना एंड हर पार्टी. आर यू गेटिंग मी? So they reduced from 50% to 30%, है ना, 50% to 30%. ठीक है. Student started violent protesting. Which kind of protest? Violent protesting. Student started violent protesting. ये मामला फिर उनके हाई कोर्ट वगैरह में गया. हाई कोर्ट में भी ये बात हो गया कि चलो ओके 30% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू द
those descendant of the freedom fighters. But a student started violent protesting, 100+ स्टूडेंट मारे गए और भी स्टूडेंट मारे गए, है ना. डेली सम स्टूडेंट्स आर डाइंग. समझ में आ रही बात. ये इस साल जून की बात है. दिस बिलोंग्स टू जून 2024, है ना. लेटर मैटर केम टू द सुप्रीम कोर्ट. सो इट स्टार्टेड द resentment against Sheikh Hasina started with the reservation policy. And first student demanded कि reservation policy को हटाओ या कम करो. But later on it culminated into the complete ousting of Sheikh Hasina. मतलब शेख हसीना को ही हटा दो. समझ में आ रही बात. Slowly the movement started becoming violent and students are started losing their lives. 100+, 200, 400 ऐसे स्टूडेंट अपना जान गंवाने लगे, है ना. फिर उनके सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि ओके रिजर्वेशन घटा के कितना कर देना चाहिए, 5%. 5% रिजर्वेशन इज गुड एंड एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दैट. बट तब तक वायलेंट मूवमेंट हो चुका था एंड इट वाज ऑल अगेंस्ट शेख हसीना, दैट समहाउ वी हैव टू रिमूव शेख हसीना. समझ में आई बात. एंड ऑल द प्रोटेस्ट वाज लेड बाय द स्टूडेंट. In 1971 also, when Bangladesh was independent, the protest was started by the student only regarding West Pakistan. That means at the time of every crisis, Bangladeshi students are there to lead the protest. They started the protest and it became violent and 5% के बाद भी वो नहीं माने. They are like, now I have to oust शेख हसीना. शेख हसीना को हटा के यहाँ से बांग्लादेश से भेज देना है. समझ में आ रही बात. एंड आर्मी ने बोला प्राइम मिनिस्टर को, वी आर नॉट गोइंग टू यूज वायलेंस ऑन द प्रोटेस्टर एनीमोर. अब हम प्रोटेस्टर पे क्या नहीं यूज करेंगे, वायलेंस यूज नहीं करेंगे. इतने प्रोटेस्टर मर चुके हैं. इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज वायलेंस ऑन द प्रोटेस्टर देन ऑब्वियसली दे विल कम टू यू, है ना. तो प्रोटेस्टर कहाँ आने लगे, प्राइम मिनिस्टर के घर पे. इंडिया गेव हर द सेफ पैसेज. क्या पैसेज दिया, सेफ पैसेज. सेफ पैसेज दिया और उनको कहां बुला लिया, इंडिया बुला लिया. ठीक है. दैट्स हाउ द शेख हसीना फ्लेड बांग्लादेश एंड ऑल्सो रिजाइंड. समझ में आ गई बात. सो दिस इज द इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज इज द रिजर्वेशन पॉलिसी, है ना. बाकी अंडरलाइन कॉज बहुत सारे थे. ठीक है. जैसे आप कुछ भी हिस्ट्री पढ़ोगे, वेन एवर यू आर रीडिंग द हिस्ट्री, 1857 रिवॉल्ट, you will read the immediate cause and also the so many underlying cause. Are you getting my point? है ना. Even if you are breaking up with your partner, there might be one immediate cause, but there are so many underlying cause. So underlying cause in the Bangladesh political crisis, है ना, are so many underlying cause. Main underlying cause was the Bangladesh was deteriorating politically day by day. समझ में आ रही बात. यहां तक समझ में आ गया. ठीक. देन द स्टूडेंट एंड द आर्मी ऑफ बांग्लादेश इनवाइटेड मोहम्मद यूनुस टू टेक चार्ज ऑफ बांग्लादेशी गवर्नमेंट एंड मोहम्मद यूनुस हैज बिकम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, है ना. इन द नेक्स्ट 3-4 months देयर विल बी इलेक्शन इन बांग्लादेश, है ना. एंड नाउ खालिदा जिया इज आउट ऑफ जेल. समझ में आ रही बात. Khalida Zia is also out of jail. Khalida Zia is out of jail. Why they have chosen Muhammad Yunus? Because of 2-3 reasons. One reason is Muhammad Yunus is not politically related to any party. That is first. And second is Muhammad Yunus is criticizing Sheikh Hasina from last 10-15 years or so. That is also the second reason. And third reason is Muhammad Yunus is the Nobel laureate. He has also won the Nobel Peace Prize. Peace, है ना. Third reason is obviously they want to create peace in the Bangladesh. How he has won Nobel Peace Prize? By doing some economic policy in the Bangladesh. Bangladesh में इन्होंने ग्रामीण बैंक लेके आए. क्या लेके आए? Concept of ग्रामीण बैंक. ग्रामीण बैंक लेके आए और क्या लेके आए? माइक्रो क्रेडिट. माइक्रो क्रेडिट.
ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. दीज कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल इन आवर इकोनॉमिक्स क्लासेस. बट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट, है ना, थोड़ा सा. व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो इज वेरी स्मॉल थिंग. व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज लोन. If you are giving very small loan to somebody, that can be called as micro credit, है ना. अब जहां पे इतने सारे लोग गरीब हैं, जहां पे हजारों लोग गरीब हैं, imagine a nation or a city or a village or a state where thousands or majority of the population is poor only, है ना. So what you can do to alleviate the problems of the poor? ठीक है. Whenever you will be reading economics या studying economics, I will be teaching you one thing that is factors of production. मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? Factor of production. What is production? Production of goods and services, है ना. Goods मतलब क्या है? This cloth is a good. Service मतलब I am teaching you, तो I am providing you a service. In factor of production, you will be reading 4 things: land, लेबर, कैपिटल, बोलो, और एंटरप्रेन्योरशिप. मोहम्मद यूनिस इज ऑल्सो अ PhD फ्रॉम US, है ना, इन इकोनॉमिक्स. सो ही अंडरस्टूड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ वेरी इजी वे. समझ में आ रही बात? इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, यू वुड रिक्वायर दीज 4 थिंग एज एन इनपुट. इनपुट को ही क्या बोल सकते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. समझ में आ रही बात? लैंड चाहिए ना, कुछ भी प्रोड्यूस करना, उसके लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए, है ना. अर्थ, लोकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा में तो बनाओगे नहीं, है ना. हवा में उड़ के कैसे बनाओगे? यू विल बी रिक्वायरिंग लैंड. ऑल्सो यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क, लेबर, देन सम कैपिटल. मनी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना. मनी किसके लिए चाहिए? कुछ खरीदने के लिए चाहिए हो सकता है. समझ में आई बात? एंड ऑल्सो यू विल बी रिक्वायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब दिमाग चाहिए, आइडियाज चाहिए, सो दैट यू कैन क्लब ऑल दीज 3 पार्ट्स टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू सेल टी, मतलब मेक टी एंड सेल टी. टी, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ठेले पे चाय लगाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले आइडिया आना चाहिए कि चाय बनाना है. तो आइडिया कहाँ चला जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप में. ठीक है. अब आइडिया आया कि चाय बनाना है, एंड देन यू स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द लोकेशन. सर्चिंग फॉर द लोकेशन इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप. यू गॉट द लोकेशन, है ना. नाउ यू आर पेइंग द रेंट. तो लैंड मिल गया, लैंड पे क्या पे करोगे? रेंट. नाउ वी विल डू द हार्ड वर्क. हार्ड वर्क मतलब चाय में पत्ती डालो, उबालो. यू आर बॉइलिंग द मिल्क अलॉन्ग विद द टी लीव्स एंड शुगर एंड, बोलो, अदरक नहीं, अच्छा ठीक. And that way you are doing labor, and by purchasing the resources, milk and the ठेला and everything, you would require capital. समझ में आई बात? तो मोहम्मद यूनुस understood a very simple thing कि all the people are entrepreneur in some way or the other. थोड़ा दिमाग तो हर किसी के पास है, या majority of the population के पास है. Majority of the population have some idea. They can do some simple things. So this problem is anyhow solved. Are you getting me? है ना. They can do the hard work. So labor problem is also solved. है ना. What they do not have is either land or capital. In many small things, the requirement of land is very little. Are you getting my point? है ना. If you want to start a steel factory, you might require acres of land. If you want to start an university, you might require acres of land. But if you want to sell tea, you require a small piece of land. तो land छोटा चाहिए, और capital भी क्या चाहिए? छोटा चाहिए. If he is going to address the problem of capital, people will start producing something. समझ में आ रही बात? And उन्होंने बोला कि लोगों को लैंड हम लोग कैपिटल दे पाएंगे, लेकिन कितना दे पाएंगे? थोड़ा थोड़ा दे पाएंगे, क्योंकि ज्यादा कैपिटल देना होगा तो एक ही आदमी को दे पाएंगे, है ना. गवर्नमेंट एंड बैंक्स डू नॉट हैव सो मच ऑफ मनी, दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी. इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दे कैन गिव माइक्रो क्रेडिट. एक चाय बनाने के लिए बताओ, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ ठेला ऑफ चाय, हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर? बताओ कितना चाहिए?
है? कितना चाहिए बोलो? 10,000, 20,000, 50,000? 50,000 में तो ग्रैंड हो जाएगा, है ना? जस्ट रिक्वायर 10,000, 20,000, नॉट मोर देन दैट। समझ में आई बात? दैट इज कॉल्ड माइक्रो क्रेडिट। Somebody want to start a Golgappa corner. Have you heard about a Golgappa corner? 10,000, 20,000 is more than enough. Somebody want to start a vegetable shop. Again 10,000 is more than enough. Are you getting my point? Somebody want to start Gutka corner. Also that is not a good idea, but suppose somebody want to start. In economics it is good. In ethics it is bad. So in economics I will tell it is good or it is okay only, है ना? Then also you require 20,000, 25,000. So these small credits are nothing but micro credit, है ना? So he led the idea of micro credit, and because of that बांग्लादेश में बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर है. The same idea was adopted in India also. आ रही बात समझ में? In other part of the world also still we are adopting the same idea, है ना? Even when there was COVID, at the time of COVID, lockdown were happening, and even the small vendors used to shut their shop and run away to their hometowns, है ना? देखा था ना लॉकडाउन में पूरे दिल्ली से, मुंबई से people are returning toward Bihar, UP and other parts from where they belong. समझ में आ रही बात? Now after 4 months, 6 months, 1 year, even if they are going, they do not have the thela anymore, neither they have the running vegetables, so they need some loan, 10,000, 20,000. So government gave them micro credit. समझ में आ रही बात? हाँ, वही exactly. समझ में आ रही बात? So this is the concept of micro credit. Last, इस टॉपिक में हमें लास्ट क्या पढ़ना है? What we need to study as last, है ना? From the perspective of international relation, हमें क्या करना चाहिए? What India should do? What India should do? देखो, अभी जो मैंने पीपीटी बनाया है, in that PPT I have combined 4-5 articles of different authors. Every author has a different perspective and every author has something different to tell, है ना? तो इसमें ये सारा रीजन जो मैंने बताया है, ऑल द कॉजेज, ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, सब मिल जाएंगे. उसमें से आपको क्या उठाना है? यू जस्ट नीड टू मेक नोट्स ऑफ जस्ट वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज नथिंग बट कीवर्ड्स. सिर्फ और सिर्फ किसका नोट्स बनाओगे? कीवर्ड्स का. Those keywords we are going to use in different parts of our syllabus. समझ में आई बात, है ना? तो अब what India should do, अब बताओ. From the last 15-20 years we have supported Sheikh Hasina, है ना? Somehow she was authoritative and we knew also because we live just nearby Bangladesh. नहीं, बगल में ही तो रहते हैं हम. Then also we supported Sheikh Hasina. ठीक है, we have to support our neighbors, वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. But now we should be neutral. If anybody is leading the Bangladesh, we cannot just reject Bangladesh that it has become rogue. Rogue means खराब हो गया है, अब उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होने वाला होता तो मोहम्मद यूनुस को क्यों बुलाते वो लोग? मोहम्मद यूनुस was nobody. He was called to rule the Bangladesh, and also there is an announcement that election will happen soon. So if there will be election in the near future और सारी चीजें होंगी, that shows that in Bangladesh the people are still democratic, है ना? Obviously there are incidences of violence and violence against the minorities living in Bangladesh, है ना? That these are just the mere symptoms. Miscreant are there in each and every nation. हर जगह ऐसे असामाजिक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है? So our Prime Minister has requested Mohammad Yunus to take care of the Hindus and other minorities living in the Bangladesh, and he has responded also. So likewise, the situation in Bangladesh is evolving, and in 2, 3, 4 months, है ना, it might get settled down and Bangladesh still start a new journey. समझ में आई बात? Still we should hope for the new journey.
So whatever government is going to come in Bangladesh, we should have good relation, we should maintain good relation with that regime. We should not be biased toward one regime की हमें सिर्फ शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ ही अच्छा रिलेशन बना के रखना था. समझ में आई बात? The relation between country and country should be neutral. It should not be impacted by the political parties ruling those country. है ना? When Barack Obama was the president of USA, ठीक है, then also Modi ji was there, है ना? He hugged Barack Obama like मतलब कि बिछड़े हुए दोस्त हैं. When Trump became the president, similar thing happened. ठीक है, तो पार्टीज कोई भी रहे, प्रेसिडेंट कोई भी रहे, वी हैव रिलेशनशिप टू मेंटेन विद दैट कंट्री. समझ में आई बात? अगेन व्हेन देयर इज ए क्राइसिस सिचुएशन, योर ओपोनेंट टेक लेवरेज ऑफ इट. हमारे ओपोनेंट कौन है इंडिया के? पाकिस्तान एंड चाइना, है ना? इफ पाकिस्तान एंड चाइना आज मेकिंग देयर इन रूट्स इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में कुछ अनसेटल करना चाहें, कुछ पावर को ग्रैब करना चाहें, तो वी शुड ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ nations like Russia, US, UK, और we are also in the neighborhood of Bangladesh, है ना? बट हमारा तो कुछ बात बन ही नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि हमारा बात शेख हसीना से होता था, वो यहीं पे है. समझ में आ रही बात? तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ अदर नेशंस कि बांग्लादेश में कुछ भी एंटी इंडिया या एंटी ह्यूमैनिटी या ऐसे कुछ टेंडेंसीज नहीं हो. समझ में आ रही बात? ऑल्सो, है ना, जो इलीगल माइग्रेंट्स वाली प्रॉब्लम वापस से स्टार्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, है ना? सो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. व्हाट इंडिया शुड डू? तो इंडिया शुड अलाई विथ एनी वन रूलिंग इन द बांग्लादेश. समझ में आ रही बात? ऑब्वियसली बांग्लादेश, द कैरेक्टर ऑफ बांग्लादेश इज डेमोक्रेटिक, है ना? एंड अब बांग्लादेश के सामने एक हमेशा एक आइडेंटिटी क्राइसिस है. पाकिस्तान वाज नॉट अ सेकुलर नेशन, पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम, है ना, रिलीजियस आइडेंटिटी पे बेस्ड. बांग्लादेश कंसिडर इटसेल्फ एज अ सेकुलर नेशन, तो वो सेकुलर रहेगा कि इस्लामिक आइडेंटिटी को आगे लेके चलेगा, बांग्लादेश के लिए इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन. इवन आफ्टर 50 years of their independence, it is still their matter of confusion. They want to live as a secular nation or want to live as a Islamic nation. समझ में आई बात? तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो बांग्लादेश के अंदर है. ठीक है. What India should do? Ally with Bangladesh and also take help of the countries like US, Russia, UK to take control of the situation in Bangladesh. मतलब देखते रहो, ऐसा नहीं कि उसके इंटरनल मैटर्स में हमें कोई दखल अंदाजी करनी है. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग in their internal matters. Just watch out with the situation unfurling in the Bangladesh. क्या situation वहाँ से arise हो रहा है, we just have to see. समझ में आ रही बात? तो यही सब कुछ काम करना है, and that is all about India and Bangladesh. ठीक है? So let's start with the slides. एक बार देख लेते हैं in just 10-15 minutes. ठीक है? थोड़ा सा कहानी की तरफ वापस से. ये देख रहे हो ना तुम? ये कौन है? बोलो. शेख हसीना. ये कौन है? मोहम्मद यूनुस. कितने खुश नजर आ रहे हैं और कितनी दुखी नजर आ रही हैं? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? बताओ. बांग्लादेश आयरन लेडी फॉल्स फ्रॉम ग्रेस. ग्रेस समझते हो ना? ग्रेस से गिर गई. सो दैट वाज द हेडलाइन, है ना? यहाँ पे गोला बारूद भड़क रहा है. ठीक है. दिस इज वन आर्टिकल. द आर्टिकल इज फ्रॉम द हिंदू. दूसरा देखते हैं. डाउनफॉल ऑफ शेख हसीना, a crisis of, बोलो, legitimacy is a keyword. Crisis of legitimacy is itself is a key phrase. समझ में आई बात? Crisis of legitimacy. Legitimacy means yes, you won the election, but still we do not consider you as our leader or prime minister. You won the election because there was no political opponent. You won the election because the political opponent was in jail. You won the election because maybe the elections were rigged. आ रही बात समझ में? So that is the crisis of legitimacy and governance. Okay? Bangladesh political upheaval. Upheaval मतलब ऐसे उतार चढ़ाव. That is called upheaval. That is also a keyword. Challenges and strategic implication for India. India के लिए क्या challenge होगा and क्या implication होगा? ठीक है? That is written by T.S. Trimurti.
T.S. Trimurti was India's permanent representative to the UN, New York, and earlier head of division for Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar and Maldives. He was an IFS, Indian Foreign Service Officer. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे ही लोग अच्छा लिखेंगे, क्या लिखना है? The article discusses the evolving political situation in Bangladesh, particularly focusing on the recent crisis following the 2024 election. The crisis started from the election itself, है ना, because Sheikh Hasina won again and nobody was ready to consider her as a leader again. समझ में आ रही बात? And then that reservation crisis, then student protest, and then it was all over. Background and rise to the power. 1975 में सी सर्वाइव द ट्रेजेडी, जब उनके फादर, उनके फैमिली पे क्या हुआ, अटैक हुआ, है ना. पॉलिटिकल कमबैक कब हुआ, 1980s में. ठीक है. 1996 में सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. समझ में आ रही बात? 2009 में सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अगेन, और अभी तक वो क्या बन रही थी, प्राइम मिनिस्टर ही चल रहा था. गोल्डन पीरियड चल रहा था इनका. Achievements and governance. Economic progress under Hasina's leadership, Bangladesh saw significant economic progress. That is true. With millions lifted out of poverty, her government won international praise for hosting millions of Rohingya refugees fleeing violence in Myanmar. There is one more country near Bangladesh that is called Myanmar. In Myanmar, there is a political group, not political group, there is a ethnic group called Rohingyas. जैसे इंडिया में पंजाबी हैं, बंगाली हैं, तमिलियंस हैं, वैसे ही म्यांमार में एक ग्रुप है जिनका नाम क्या है, रोहिंग्यास. एंड रोहिंग्यास वेर फाइटिंग विद द म्यांमारी गवर्नमेंट एंड आर्मी. उनको एक नया कंट्री चाहिए, एक अलग स्टेट चाहिए. म्यांमार आर्मी ने उनको मार मार के भगाया. तो भगाया तो वो लोग भाग के किधर आए, बांग्लादेश एंड इंडिया. उनको जान के खतरा था, है ना. सो दे वेर सेव्ड बाई द बांग्लादेशी गवर्नमेंट कि चलो यहाँ आके यहाँ रह लो. Obviously, she won the praise of the international community. कि she has saved an entire community. Otherwise, Myanmari army could have killed the Rohingyas. समझ में आ रही बात? ठीक है, obvious बात है. She established a war crime tribunal. That is not important. है, दो important काफी हैं. Sheikh Hasina secured back-to-back electoral victories, solidifying her position. तो सही बात है. है ना. ट्रिगर फॉर डाउनफॉल. डाउनफॉल क्या है, री इंस्टेटमेंट ऑफ विच सिस्टम, कोटा. री इंस्टेटमेंट मतलब स्टार्टेड कब हुआ था, वो उनके पापा के टाइम पे. ठीक है. रिजर्वेशन कितना था, 50% से स्टार्ट हुआ, फिर कितना गया, 30% गया. ये सब याद नहीं करना, बस बेसिक चीजें, है ना. क्राइसिस कैसे हुआ, दैट यू शुड बी नोइंग, है ना. कि अगर ऐसा क्राइसिस बांग्लादेश में हुआ, है ना. those who will study political science in UPSC, they will know, है ना, they will study about Aristotle and the theory of violence. कि violence और violence के से ज़्यादा theory of revolution, sorry, theory of revolution. कि revolution का कारण क्या होता है. revolution, the Aristotle ने बोला था, Aristotle has told that the cause of revolution is the feeling of inequality. The cause of revolution is feeling of inequality. The inequality can be real or perceived. inequality real में भी हो सकता है, रियल में नहीं हो बट लग भी सकता है. तब भी क्या आ सकता है, रिवोल्यूशन आ सकता है. समझ में आई बात, मूवमेंट आ सकता है. ठीक है. तो यहां तो दिख ही रहा है, 50% दे दिया तो इनइक्वालिटी आ ही रहा है. लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी. Over the years, Hasina's government faced accusation of lacking political legitimacy due to its treatment of the opposition. The Bangladesh National Party, the main opposition party, boycotted multiple elections after its leader Khalida Zia was jailed on the corruption charges. From the 4-5 years he is in the jail only. These things, economic setback, obviously, मतलब economic progress हुआ था, but after COVID, after Russia-Ukraine war, it was getting difficult for Bangladesh also to recuperate. तो थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी चल ही रहा था, कोटा रिजेंटमेंट चल ही रहा था, है ना. अंडर एस्टिमेटिंग स्टूडेंट एंगर. स्टूडेंट के एंगर को अंडर एस्टिमेट कर रही थी. मैं नहीं करता तुम्हारे एंगर को अंडर एस्टिमेट, है ना. तुम लोग गुस्सा कर लेना जब चाहिए हो. रिवोकिंग द, अच्छा एक और काम, प्रोवोकिंग द प्रोटेस्टर. प्रोवोक
जो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ 1971 दोज हु वेर सपोर्टिंग द पाकिस्तानी आर्मीज वेर कॉल्ड रजाकार्स। क्या बोला गया उनको? रजाकार। रजाकार मीन्स ट्रेटर, गद्दार, कि वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया? स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको क्या बोल दिया? रजाकार बोल दिया और भड़का दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है। एस्केलेशन ऑफ प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके कितना पे ले आया? 5%। बट रिन्यूड डिमांड, डिस्पाइट दिस विक्ट्री द स्टूडेंट एस्केलेटेड देयर डिमांड कॉलिंग फॉर हसीना रेजिग्नेशन एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द डेथ ऑफ देयर फेलो प्रोटेस्टर्स। शो डाउन ऑन ढाका ऑन अगस्त 5 में, जहां गुवाहाटी पानी में डूब रहा था, मतलब बहुत बाढ़ आ चुका था, वहीं बांग्लादेश से वो भाग रही थी। ठीक है, एक साथ ही हो रहा था दोनों। वायलेंट कन्फ्रंटेशन इंस्यूड ढाका लीडिंग टू ओवर 100 डेथ्स इन सिंगल डे। सिंगल डे में 100 डेथ। 100 डेथ तो ऑफिशियल होता है, अनऑफिशियल तो यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू एंड रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन बट द प्रोटेस्टर परसिस्टेड। देख रहे हो प्रोटेस्टर, है ना, ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे बांग्लादेश में, ऐसे चल रहा है, फिर इनको भागना पड़ा। मिलिट्री का स्टैंड क्या था? रिफ्यूज टू यूज फोर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टर। अगस्त 4 आर्मी चीफ इन्फॉर्म्ड हसीना दैट ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री है। दैट कमेंट्री बस उसको लिखना, रटना, याद करना नहीं है। समझ में आ रही बात? दैट इज बस पढ़ने के लिए, है ना। 5 अगस्त को शेख हसीना रिजाइंड एंड फ्लेड टू इंडिया। इंडिया आई तो जान बच गया। वहां से वो लंदन जाने वाली थी, लंदन वालों ने बुलाया ही नहीं। समझ में आ रही बात? बस स्टिल वी आर द गुड फ्रेंड, तो हम लोग रह गए। इंटरिम गवर्नमेंट किसके फॉर्मेशन से बना? मोहम्मद यूनुस, है ना, नोबल लॉरिएट। चैलेंजेस क्या है? रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड आवामी लीग सपोर्टर। जो हसीना के सपोर्टर होंगे वही तो मार खा रहे होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये सब इकोनॉमिक चैलेंज वापस से रहेगा। श्रीलंका में इन 2022 देयर वाज इकोनॉमिक चैलेंज and similar kind of political challenge where president left श्रीलंका और भाग गए प्रेसिडेंट वहां से। but within few months normalcy in श्रीलंका was established। मैं ऑनलाइन देख लूं, ऑनलाइन देख ही नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग अभी भी ऐड हुए हो तो यू विल हैव रिकॉर्डेड लेक्चर। वाज दिस द सेम पार्टी हु इज रनिंग द केयरटेकर गवर्नमेंट? नहीं, अलग है। खालिदा जिया वाज इन पावर फॉर हाउ मेनी टर्म्स? कुछ खास नहीं, बहुत एक आध टर्म के लिए पावर में थी। लीजिमेसी नहीं, लिजिटिमेसी, टेंशन नहीं लो। ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। डिप्लोमेटिक प्रैग्मेटिज्म शुड बी फॉलोड, बहुत बढ़िया चैतन्य। Now that the government may not be pro-India, so we would take some measures regarding asylum for Sheikh Hasina, else China can take the advantage. Yes, देख रहे हो सब लोग IFS बनने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। मोहम्मद यूनुस went to धाकेश्वरी टेम्पल टू मीट द हिंदूज ओवर देयर। बहुत बढ़िया, बॉल बाय बॉल कमेंट्री पता है आपको। India's peacekeeping forces can be sent to Bangladesh. Textile industry boomed as well. सही बात है। Did the military wanted her to leave the nation? हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिट्री वाज ऑल्सो फेड अप विथ शेख हसीना। इफ द प्रोटेस्टर एंड इन द प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स आर डाइंग एवरी डे, ऑब्वियसली प्रोटेस्टर्स एंड स्टूडेंट्स आर नॉट टेररिस्ट और समबडी, है ना, बिकॉज ऑफ मतलब मिलिट्री कैन नॉट गन देम डाउन। आ रही बात समझ में? तो ऑब्वियसली मिलिट्री वाज नॉट वेरी हैप्पी विद हाउ द शेख हसीना वाज रूलिंग, है ना। मिलिट्री, यू कैन से द मिलिट्री वाज न्यूट्रल इन दिस इंस्टेंस। अदरवाइज अगर मिलिट्री न्यूट्रल नहीं होता तो मिलिट्री वुड हैव टेकन द कंट्रोल। मोहम्मद यूनुस को तो नहीं आने देता। समझ में आ रही बात? ठीक है। इकोनॉमी यूज तो वैसे श्रीलंका में नॉर्मलसी वाज एस्टैब्लिश्ड। ये पुराना कंटेक्स्ट है, BDR म्यूटनी, दैट इज नॉट रेलेवेंट टुडे। इन 2009 इन इंडिया देयर आर सो मेनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, है ना। One is army that you all know, but there are so many forces like BSF, SSB, है ना। वैसे ही, हाँ, वैसे ही बांग्लादेश में there was one force, paramilitary force। तो नीचे वाले जो उनके लोग होते हैं पर्सनल, सब उसी से जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स। ऊपर वाले पोस्ट पे बांग्लादेश की आर्मी से बिठा दिया जाता था। सो दे स्टार्टेड रिजेंटिंग दैट कि हमारा जो हेड हो वो हमारे ही सर्विस से हो।
समझ में आई बात। एंड दे स्टार्टेड म्यूटिनी, मतलब मारना पीटना, अपने हेड को ही मार दिया क्योंकि वो आर्मी से था, उसको कंट्रोल कर लिया था किसने, शेख हसीना ने। बट दैट स्टोरी इज नॉट रेलेवेंट, बस बताने के लिए बता दिया है ना। 2009 में ऑल्सो देयर वाज अ क्राइसिस, बट दैट क्राइसिस वाज प्रिवेंटेड बाय द शेख हसीना बिकॉज द क्राइसिस वाज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स हर। समझ में आ रही बात? दैट इज नॉट रेलेवेंट, पुराना है। करंट चैलेंज, इलेक्शन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, रोल ऑफ बांग्लादेश आर्मी, है ना, कुछ नहीं, पुराना पुराना चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। रिस्क एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, थ्रेट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन समझते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पोलराइजेशन मतलब दो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना। टू अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाना। अगर आप ग्रुप्स में बढ़ जाओगे तो वॉर के चांसेस बढ़ जाएंगे, टेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। इन इंडिया ऑल्सो एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज आर क्रिटिसाइज्ड, है ना, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, कि दे आर पोलराइजिंग द यूथ्स और पीपल इन हिंदूज एंड मुस्लिम। ऐसे वो लोग फ्लूइड मस्त मजे में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन दे आर पोलराइजिंग, मतलब अलग अलग इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। हिंदूज हैव सम डिफरेंट इंटरेस्ट एंड मुस्लिम्स हैव सम डिफरेंट इंटरेस्ट। So likewise there is a threat of polarization in Bangladesh. Potential for anti-India sentiment because obviously जिंदा है इंडिया के वजह से ही शेख हसीना, and they were all against शेख हसीना. That can be a possibility, है ना. Regional comparison and India's position, mirroring Myanmar and the Maldives. Myanmar में there is similar situation, even worst situation. But we are not even aware of the Myanmar situation. That I will make you aware in the IR classes, है ना, not required right now. Myanmar also there is military, and there are 4-5 such groups who are fighting among themselves to take control of Myanmar. म्यांमार में 50% हिस्सा मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, 50% हिस्सा अलग अलग एथनिक ग्रुप, बंदूक वाले ग्रुप कंट्रोल कर रहे हैं। डेमोक्रेसी भाड़ में गई वहां पे। समझ में आ रही बात? अब उनका क्या होगा पता नहीं। तो बांग्लादेश का हाल कम से कम म्यांमार जैसा नहीं हो। वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, बांग्लादेश के साथ इंडिया 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। कितना? 4096, दैट इज द हाईएस्ट। ऐसा लगेगा कि चाइना के साथ, बट चाइना के साथ भी क्या है, कम है, 3500 के अराउंड कुछ होगा, है ना। बांग्लादेश के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर इज द हाईएस्ट। ऐसे 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 करके कितना हो जाता है? 4096। समझ में आ रही बात? दैट इज इंपॉर्टेंट। मालदीव्स में, मालदीव्स हैज बिकम एंटी इंडिया, है ना। वो जनवरी में आप लोगों ने देखा होगा, अपने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे और लक्षद्वीप में बैठ गए थे। मालदीव्स वालों ने गाली बकना स्टार्ट किया था, ठीक है। और भी चीजें हैं दैट वी विल स्टडी इन आवर IR क्लासेस। इंडियाज स्ट्रैटेजिक अप्रोच, हमें स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करना चाहिए। अब पुरानी बातें और हैं, पुरानी बातें आर नो मोर रिक्वायर्ड। और भी आर्टिकल्स हैं बट दे और स्पीक अबाउट द सिमिलर थिंग। आपको देखो फिर कीवर्ड्स आई हैव हाईलाइटेड, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये कीवर्ड बस देख लेना। बाकी द स्टोरी इन एवरी आर्टिकल इज सेम ओनली। स्टोरी कहां से बदल देंगे, स्टोरी तो सेम ही है ना। दे विल एनालाइज इट डिफरेंटली बाय यूजिंग डिफरेंट कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स डिफरेंट होंगे थोड़े बहुत, दैट वी you need to take care. India's narcissism has blinded it to a key fact of modern politics, misconception and alienation, है ना। तो ये सब कुछ चीजें। बांग्लादेश आइडेंटिटी एज इधर एज ए रिलीजियस और सेकुलर नेशन रिमेन्स, बोलो, अनरिजॉल्व। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मोनोपोली ऑफ पावर, पावर वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द शेख हसीना। मोनोपोली इज वेरी डेंजरस, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे कहीं भी हो, है ना। मोनोपोली इज ओनली बेनिफिटिंग द पर्सन हु इज इन द पावर। मोनोपोली सिर्फ उसको ही बेनिफिट करती है। अगर इंटरनेट देने के लिए सिर्फ एक कंपनी होता तो जितना मर्जी उतना प्राइस लेता। समझ में आ रही बात? जितना खराब चाहे उतना खराब सर्विस देता। समझ में आ रही बात, है ना। तो मोनोपोली इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। बस यही चीज है, बस, ठीक है। होप फॉर द फ्यूचर, साइन ऑफ होप, चैलेंजेस,
बांग्लादेश में अब क्या होगा, इंटरनल मॉडर्नाइजेशन होगा, ऑल थिंग्स आर सेम ओनली, ठीक है। फिर दैट इज लास्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑल्सो सेम ओनली, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और अलाइन करके नोट्स बना के दे दूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क एंड वी हैव फिनिश्ड विद द इंडिया, नॉट इंडिया, बांग्लादेश क्राइसिस, है ना, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन वी विल स्टडी इन आवर IR क्लासेस। बोलो रोल ऑफ अमेरिका, रोल ऑफ अमेरिका हैज नॉट बीन मच हाईलाइटेड, है ना। देखो शेख हसीना इज एलिजिंग अमेरिका की उसमें अमेरिका का भी रोल रहा है ना। देयर इज एन आइलैंड जिस पे अमेरिका कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है, बट एलिगेशंस तो लोग लगाते रहते हैं, नथिंग इज वेरीफाइड। तो नथिंग इज वेरीफाइड तो वी कैन नॉट इवन क्लेम डायरेक्टली, मतलब द मेजर प्रॉब्लम है ना, ये जितने भी 4-5 आर्टिकल हैं किसी ने भी अमेरिका की बात नहीं कही है, सबने बोला कि अमेरिका तो छोड़ दो तुम, है ना। जो मेजर प्रॉब्लम है वो बिकॉज ऑफ बांग्लादेश का इंटरनल प्रॉब्लम ही है ना। तुमको एक चीज बता देता हूं मैं, अभी ये जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उनका नाम है प्रताप भानु मेहता, है ना। ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, है ना, एजुकेशनिस्ट बोल लो या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल लो इन इंडिया, ठीक है। तो ये जब आर्टिकल लिखते हैं, इनके आर्टिकल जनरली समझ में ही नहीं आते हैं, शशि थरूर से भी ज़्यादा बढ़िया अंग्रेजी लिख देते हैं ये, ठीक है। और बहुत ही सटीक आर्टिकल ये लिखते हैं, जब भी लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, और बहुत कम आर्टिकल आता है इनका। इट्स नॉट लाइक एवरी वीक हिज राइटिंग और एवरी मंथ हिज राइटिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी 2-3-4 months you might find one article of Pratap Bhanu Mehta. He has also not mentioned anything related to US and other countries. That is all sensationalized by the YouTube channels, है ना। उनको व्यूज चाहिए, क्या चाहिए, व्यूज। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कंटेंट जो आप एग्जाम में लिखोगे। समझ में आ रही बात, ठीक। कोई दिक्कत, पूछो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, है ना। हैव यू अंडरस्टूड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन बांग्लादेश, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ओके। व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फॉर आवरसेल्फ, इंडिया के लिए या किसी भी और कंट्री के लिए हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ऑथोरिटेरियनिज्म इज बैड, देयर शुड बी रूम फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट, वहां लोग अपनी बातें रख सकें, ऐसा जगह होना चाहिए, है ना। कोई भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको गद्दार, ट्रेटर, टेररिस्ट बोल के दबाना उचित नहीं है। समझ में आ रही बात, है ना। वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। यही सब बेसिक चीजें हैं। एंड सम कीवर्ड का मैं अलग से लिस्ट भी बना दूंगा इन सारे कीवर्ड्स का, दोज विल बी हेल्पफुल इन डिफरेंट पार्ट इन योर सिलेबस। कुछ और पूछना तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर, है ना। करंट अफेयर्स में बस करंट अफेयर्स ही मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इज अ सेपरेट टॉपिक इटसेल्फ, है ना। इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 hour or 2 hour टू अंडरस्टैंड द इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। व्हाट इज द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलिज्म, सुनो सुनो सुनो, इसने पूछा है चैतन्या ने, व्हाट इज द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलिज्म, है ना। व्हाट इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यू अंडरस्टैंड ना, है ना। डेमोक्रेसी मतलब एवरीवन हैज सम से, everyone has some control, every person has some control. Institutionalism means obviously Bangladesh was democracy and election was happening in Bangladesh, but in true sense Bangladesh शायद डेमोक्रेसी नहीं रह गया था, है ना। तो institutions are like प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट का इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन था वो डेमोक्रेटिक नहीं रह गया था। तो जो भी अब गवर्नमेंट में आए बांग्लादेश में, कंट्रोल में आए बांग्लादेश में, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलिज्म को एस्टैब्लिश करे। वो इंस्टीट्यूशन अथॉरिटेरियनिज्म नहीं हो, टोटलिटेरियनिज्म नहीं हो, क्या हो, डेमोक्रेटिक। समझ में आ रही बात, और बताओ, ऐसी डाउट पूछो, तुम लोग भी पूछो यार, तुम लोग भी पूछ सकते हो। द लास्ट बेंच, आपको बस पीछे बैठ के अच्छा लग रहा है, पीछे वाला एसी ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है उधर। और मिस्टर टोपी, एडिडास हो, कौन सा डास हो, शुभम, ओके, समझ में आ रहा है बेटा, ओके। शुभम के बगल में, एनी डाउट, ओके। सो शुड आई end today's class here only?
फिर आप जाके वीकेंड एंजॉय करो। नहीं, वीकेंड पे क्या करोगे जाके बताओ? रिवाइज करोगे? क्या रिवाइज करोगे? ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, है ना। आपके पास जस्ट वन होमवर्क है, एंड दैट वन होमवर्क इज मेक नोट्स ऑफ कीवर्ड्स, मेक होम नोट्स ऑफ कीवर्ड्स ओनली, ठीक है। और अपने अपने रेस्पेक्टिव क्लास में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मैसेज नहीं, है ना, अपने अपने क्लास में बता देना, जो भी रेस्पेक्टिव टीचर क्लास ले रहे होंगे उनको लिख के दे देना कि सर दीज कीवर्ड्स आई कुड नॉट अंडरस्टूड, ठीक है। मैं वो कीवर्ड फिर एक प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा, एक छोटा वीडियो बना के, वो कीवर्ड्स कहाँ कहाँ कैसे काम आ सकते हैं विथ एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आई बात? जो कीवर्ड समझ में आ गया बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी वीकेंड। अगर कुछ लोगों का देखो बजट के ऊपर मुझे एक टेस्ट लेना है ना, तो टेस्ट मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊँ, सॉरी, आज अगर टेस्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ तो टुमारो यू विल हैव अ टेस्ट, अदरवाइज मंडे वगैरह कभी हो जाएगा, इट विल बी हाफ एन आवर टेस्ट। बजट से कितने क्वेश्चन दूंगा? 20 क्वेश्चन, हाफ एन आवर इज सफिशिएंट, है ना, तो वो हो जाएगा। बाकी जिनकी इकोनॉमिक्स क्लास चल रही है उनका टेस्ट भी हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है। चलो, थैंक यू।